Hello students, I am your teacher for today's lecture, and today's lecture is linear inequalities. Now this is the second lecture on linear inequalities. As you know, in the first lecture we had done some rules of linear inequalities, some basic linear inequalities. Then we did inequalities involving quadratic expressions, which we called as quadratic inequalities. Then we moved on to rational inequalities, right? Now today we are going to do very important type of inequalities which involve modulus of a number. Is it all right? Now first of all we will see and understand what do we mean by modulus of a number. Okay, so let us start the chapter. So modulus of a number. Now let me first take some examples and then we'll generalize to define modulus of a number x. Now you know that when we take modulus of 2, if the number inside the modulus is positive, okay, any positive real number, then it comes out as it is. Is it all right? In smaller classes also you have done this. Now if you take modulus of 0, again it is equal to 0. That means if the number inside the modulus अगर वो 0 है या पॉजिटिव है, then that number is taken out as it is. अब देखो अगर हमारे पास मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है. Now what does modulus do? It makes the number positive. Okay, 0 का मॉड 0 रहता है, तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके आगे माइनस लगा देंगे. तो जब भी नेगेटिव नंबर मॉडुलस के आपके बाहर आएगा ना, तो आप उसके आगे माइनस लगाओगे so that it becomes positive. Is it all right? So not just for integers, for any real number. For example, if you have under root of 3, right, it is positive, so it will come out to be as it is under root of 3, right? Suppose I have minus 5 by 4, I have a rational number. Then now it is negative, so make it positive. We put minus sign before it so that the number becomes positive, that is 5 by 4. Is it all right? So that means, as I said, if the quantity inside the modulus अगर वो 0 है या positive है, it is to be taken out as it is, और अगर वो negative है तो we put minus sign in front of it to make it positive. तो इसी से हम define करते हैं. Let us see definition of modulus. And this is a very important definition. Whenever you come across modulus in any chapter, it is almost used in all the chapters, then we have to use this definition. All right. So what do we say? Mod x. Now as I told you in above examples, अगर हमारे पास mod के अंदर वाली quantity negative है, to make it positive we have to put minus sign in front of it, because if x is negative, minus x will be positive. और अगर mod के अंदर वाली quantity बेटा greater than or equal to 0 है, तो mod x will be equal to x itself. Is it all right? ये है. इसका अगर थोड़ा सा हम ग्राफ भी देख सकते हैं before we do the inequalities, okay, to make you understand. Now let me compare. For example, I have y equal to x and I have y equal to mod x, right? अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं y equal to x का, then you know that whatever value x is taking, same value y will be taking. So I have this 0, x is 0, y is 0. So if I have x equal to 1, then y will also be 1. Then if you have x as 2, y will again be equal to 2, x is equal to y. If x is negative, y will also be negative, it will be minus 1. If x is minus 2, y will also be negative, that is minus 2. All right. And if I join, this is the straight line, that is the graph of y is equal to x. All right. Now let us look at the graph of y is equal to mod x and see the difference. Now let me take, suppose I now want to draw the graph of y is equal to mod x. Now what happens? If I take x to be, for example, if I take this case when x is greater than or equal to 0, then in that case you can see mod x is equal to x. So graph will be same as y equal to x. If x is 0, y is also 0, right? अगर x 1 है तो y की value भी 1 हो गई. If x is 2, mod of y will also be y will be mod of 2, that is 2. So this part is going to remain the same, that is, it is the same line y equal to x. Now what happens if x is negative?
अगर x -1 है तो y कितना होगा? y will be equal to mod of -1, and what do? We put minus sign in front of it to make it positive. So if x is -1, y is equal to 1, right? तो अगर हमारे पास x -2 है तब y कितना हो जाएगा? देखो, y will be equal to similarly mod of -2, which is minus of -2, and it will be equal to 2. So in this case y is only taking positive values. तो इधर जो ग्राफ बनेगा that will again be a straight line like this. But ये कौन सी लाइन है? Now this line is not y equal to x, this line is y equal to -x, because in this case we have y to be negative of x. You can see if x is negative, y is positive. So y is negative of x. So this line is y equal to -x. One more important thing we can observe from these two graphs. What are these? Look here, that you can observe if x is greater than or equal to 0, as we said, we have mod x equal to x. You can see the graph is same. Okay, look here, this is y equal to x and this is also y equal to x. So when x is greater than or equal to 0, mod x is equal to x. When x is negative, then which one is greater? If x is negative, you can see this is y equal to x and this is y equal to mod x. So you can clearly see in that case mod x will be greater than x. Is it all right? So whenever x is greater than or equal to 0, mod x x के इक्वल ही होगा, बिकॉज अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आती है. इवन 0 का मॉड भी बेटा 0 होता है. लेकिन अगर x नेगेटिव है तो मॉड x पॉजिटिव हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाएगा, एज यू कैन सी. तो इफ x इज नेगेटिव, मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, राइट? तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गई मॉड्यूलस की. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इनइक्वालिटीज. ठीक है, अब हम इनइक्वालिटीज पे मूव ऑन करते हैं. तो लेट अस राइट basic inequalities on modulus. So we are going to do that. अब इसमें सबसे पहले हम 4 बेसिक इनइक्वालिटीज लेने वाले हैं. First basic inequality that I am going to take on modulus will be that mod x is less than a and a is positive. In the first 4 inequalities on modulus, I'll be taking a to be positive. Okay, what happens when a is 0 or negative? That we will see after these. Okay, now how do we solve it? First of all, let me tell you the method of solving it and then we'll see the reason behind it. अब करना क्या है, जैसे आपके पास mod x less than a है, a positive है, तो on the number line we will take the number line. उसमें obviously minus a will be smaller and a will be bigger because a is positive. अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस ए, x कैन नॉट बी इक्वल टू ए, तो दोनों के ऊपर हमारे पास आएंगे ब्लैंक सर्कल्स. ठीक है, और उसके बाद मॉड के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है हमारा, जस्ट एज वी यूज टू टेक इट पॉजिटिव इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एंड रैशनल इनइक्वालिटी. ठीक है ना, तो मॉड के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लो और फिर वैसे ही प्लस माइनस प्लस लगाएंगे. अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो मैंने कहा जैसे x माइनस ए नहीं हो सकता, a नहीं हो सकता, और लेस देन है तो माइनस वाला रीजन आंसर हो जाएगा. तो ये जो पहली इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस a से लेकर a. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट बेसिक हमारी इनइक्वालिटी ऑन मॉड्यूलस. अब हमने माइनस वाला रीजन क्यों लिया है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. ठीक है, आई विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई हैव mod x is less than 3. तो हमने क्या मेथड बोला है? नंबर लाइन पे, एंड यू कैन सी 3 इज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, तो नंबर लाइन पे आई विल टेक -3 एंड आई विल टेक 3. देन आई विल पुट प्लस माइनस प्लस, बिकॉज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो -3 और 3x नहीं हो सकता, लेस देन है तो माइनस वाला रीजन हम आंसर लेंगे. अब क्यों माइनस वाला रीजन आंसर लिया है? रीजन देखो, अगर हम x को बेटा कुछ भी लेते हैं इसके बीच में, if you take x to be any number between -3 and 3, suppose I take -1, तो mod of -1 देखो कितना हो जाएगा? नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो कैसे बाहर आएगी? माइनस लगाएंगे उसके आगे टू मेक इट +1, and you know that 1 is less than 3, तो which satisfies this inequality that mod x is less than 3, right? Now suppose I take x to be before -3, that is smaller than -3. suppose मैंने -4 ले लिया,
अब देखो मॉड ऑफ -4 क्या हो जाएगा, व्हेन आई टेक मॉड्यूलस ऑफ -4 इट विल बी अगेन माइनस ऑफ -4 विच इज 4. क्या 4 लेस देन 3 है? नहीं है, 4 is not less than 3. So that means if I take x as -4 it will not satisfy the given inequality. तो -3 से जो छोटा नंबर होगा बेटा उसका जो मॉड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सिमिलरली इफ आई टेक x टू बी ग्रेटर देन 3, ठीक है, सपोज आई टेक x एज से 4, ठीक है, अगर हमने यहां पे x को मान लो 4 ले लिया, यहां पे ये देखो अगर x को 4 लिया है तो अगेन 4 का मॉड, ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो एज इट इज बाहर आएगा, अगेन 4 इज नॉट लेस देन 3, तो 3 से बड़ा इवन 3.1 3.2 ये भी नहीं ले सकते. तो वी कैन टेक ओनली वैल्यूज बिटवीन -3 एंड 3 एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक x एज -3 और 3. व्हाई? बिकॉज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इज देयर. तो इस इनइक्वालिटी का हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 3. सो दैट विल बी द सोल्यूशन. Okay, so this is the reason we take the region in between -a to a when we have this inequality mod x is strictly less than a. अब सेकेंड लेते हैं. सपोज सेकेंड हमारी इनइक्वालिटी है कि mod x is less than or equal to a and a is positive. ये वाली इनइक्वालिटी. अब देखो पिछले और इसमें क्या फर्क है, इसमें mod x इक्वल टू a भी अलाउड है. मेथड वही रहेगा. ऑन द नंबर लाइन वी आर गोइंग टू टेक -a एंड a बिकॉज a इज पॉजिटिव, -a छोटा होगा, a हमारा बड़ा हो जाएगा. इज इट ओके? अब देखो कैसे करना है, क्योंकि mod x इक्वल टू a अलाउड है तो -a भी हो सकता है और a भी, क्योंकि -a का मॉड विल बी a और a का मॉड तो a हो गई. देन वी पुट प्लस माइनस प्लस, राइट, और लेस देन a है तो माइनस वाला रीजन आंसर. तो सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -a से लेकर a, राइट. तो इस इनइक्वालिटी में ये हो जाएगा. क्या डिफरेंस है फर्स्ट वन और इसमें? -a और a हमारा इंक्लूड हो रहा है. पिछले में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी सो वी हैड ओपन इंटरवल, इसमें लेस देन और इक्वल टू a है सो वी हैव क्लोज्ड इंटरवल. नाउ लेट मी टेक द थर्ड वन. Suppose I have third inequality as mod x is greater than a and a is positive. Is it okay? Now what we do? Again on the number line we are going to take -a and a. ये हम लेंगे. अब because strict inequality है तो x ना तो -a हो सकता है ना ही a हो सकता है, तो -a पे blank circle, a पे भी blank circle because these points are to be excluded. अब देखो फिर से प्लस माइनस प्लस, और फिर से इंश्योर कर लो मॉड के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि है. नाउ वी ग्रेटर देन है तो प्लस वाला रीजन लेंगे, तो दिस रीजन विल बी द आंसर. इफ यू टेक x लेस देन -a उसका मॉड भी a से बड़ा होगा. विल लुक एट वन एग्जांपल ऑल्सो. और अगर x a से बड़ा ले रहे हो तो उसका मॉड भी a से बड़ा हो जाएगा. तो इसका हमारा सोल्यूशन हो गया. पीछे हम जा रहे हैं -∞ तक एंड फॉरवर्ड वी आर गोइंग अप टिल इंफिनिटी. सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -a एंड यूनियन a टू इंफिनिटी. तो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड इनइक्वालिटी ऑन मॉडुलस, राइट. नाउ let me take an example and see why we are taking plus region. Suppose I have, for example, mod x is greater than 2, right? I want all the real values of x which satisfy this inequality. So on the number line, what I am going to do, I will take -2 and 2 because strict inequality है तो x -2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x आप -2 लोगे बेटा, see if x is equal to -2 तो उसका मॉड जो है मॉड x विल बी -2 का मॉड 2 हो जाएगा, ठीक है. और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, हमें वो वैल्यूज चाहिए जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, तो -2 और सिमिलरली 2 पे ब्लैंक सर्कल. फिर मॉड के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस. अब ग्रेटर देन है तो हम ये प्लस वाला रीजन आंसर लेंगे. तो सॉल्यूशन सेट विल बी रिटन एज -∞ टू -2 एंड देन यूनियन 2 टू इंफिनिटी. Now why are we taking these values? Let us see. If I take x to be less than -2, suppose I take -3. तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास x की वैल्यू -3 है तो इसका मॉड क्या होगा -3 का? It will be minus of -3 which is equal to 3 and of course 3 is greater than 2, तो it satisfies the given inequality. हमें वो वाली वैल्यूज चाहिए जिनका मॉड 2 से बड़ा है.
And similarly, if you take any number greater than 2, suppose I take 2.5. So if I take x as 2.5, then since it is a positive quantity, तो mod के बाहर as it is आएगी, it will be 2.5 itself. And we know that 2.5 is greater than 2, so this is also satisfying the inequality. Now what happens if you take any number between minus 2 and 2? Suppose I take 0. If I take x as 0, तो 0 का mod as I said 0 ही होता है, and 0 is not greater than 2. So this does not satisfy. So if you take any number in between minus 2 to 2, तो उसका जो mod होगा बेटा वो 2 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, तो वो सारे points इस inequality को satisfy नहीं करेंगे. Clear? तो इसीलिए हम प्लस वाला रीजन लेते हैं whenever we have greater than sign. Now let me take the fourth inequality on modulus. Fourth inequality होगी mod x is greater than or equal to a and a is positive. Is it okay? अब देखो इसमें फिर से क्या करना है. On the number line I will take minus a and a. अब mod x equal to a भी allowed है, तो x can take value a and x can also take value minus a. Mod of a will be a because a is positive, और माइनस a का mod जो है वो a हो जाएगा. दोनों ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट प्लस माइनस प्लस. इंश्योर कर लो मॉड के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमने ले लिया, और ग्रेटर देन है तो प्लस वाला रीजन आंसर होगा. पीछे विल गो अप टिल माइनस इंफिनिटी एंड फॉरवर्ड वी विल गो अप टिल प्लस इंफिनिटी. सो हाउ डू वी राइट द सॉल्यूशन? वी से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a क्लोज्ड इंटरवल and then union closed interval a to infinity. Is it okay? So that is how we solve this inequality. तो ये तो हो गई हमारी 4 basic inequalities on modulus. अब इन चारों में as I told you I have taken right hand side a to be positive. Now let me take the case when a is 0 and then we will take the case when a is negative. Okay. Now let me take this case when a is नेगेटिव. अगर a नेगेटिव है तो क्या होगा? नाउ लेट मी टेक द फर्स्ट इनइक्वालिटी इन दिस केस. सपोज आई हैव mod x लेस देन a एंड a इज नेगेटिव. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई टेक a टू बी -1. ठीक है. अब मेरे पास इनइक्वालिटी क्या बन गई? mod x इज लेस देन -1. हमने क्या कहा था? किसी भी नंबर का जो मॉड ले लेते हैं वो 0 या 0 से बड़ा हो जाता है. ग्राफ भी आपने देखा था. ग्राफ वाज लाइक दिस, राइट? वी हैड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x लाइक दिस. दैट मीन्स किसी भी नंबर का जब हम मॉड लेते हैं इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो किसी भी नंबर का मॉड नेगेटिव नंबर से छोटा तो हो ही नहीं सकता. तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा नो सोल्यूशन, या फिर कह सकते हैं एम्प्टी. सो इफ a इज नेगेटिव दिस इनइक्वालिटी विल नेवर बी सेटिस्फाइड. Similarly, let me take the second one. If I have mod x is less than or equal to a and a is negative. Again understand it through an example. Suppose I take a as say -1. Negative लेना है, कोई भी नंबर ले लो, या -half ले लो, कुछ भी ले सकते हैं. Now inequality ये बनी ना, mod x is less than or equal to -half. तो mod x तो 0 या 0 से ऊपर होता है, -half तो नीचे आ जाएगा. तो अगेन इट विल नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनी रियल नंबर. तो कभी भी किसी नंबर का मॉड नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल या उससे छोटा नहीं होगा. तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी हो गया नो सॉल्यूशन, और वी कैन से इट इज एन एम्प्टी सेट. ठीक है. तो ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी थी इसका भी बेटा नो सॉल्यूशन है, और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू है तो भी हमारे पास नो सॉल्यूशन है, प्रोवाइडेड a इज नेगेटिव. A positive we have already done. अब इसी में थर्ड देखो. Suppose I have mod x is greater than a when a is negative. I have this. अब again let me take an example. Suppose I take a to be -1 and my inequality becomes mod x is greater than -1. अब किसी भी नंबर का मॉड हमें पता है इफ x इज एनी रियल नंबर, राइट? वी नो दैट मॉड ऑफ x इज ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा. अब आप देखो नंबर लाइन पे, अगर कोई नंबर 0 या 0 से बड़ा है तो -1 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली हो गया. तो दैट मीन्स दिस इनइक्वालिटी विल बी सेटिस्फाइड व्हाटएवर x बी. तो x कैन बी एनी रियल नंबर.
ठीक है ना। तो अगर हमारे पास मॉड x ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर है तो ये बात ट्रू होगी फॉर एवरी रियल नंबर। तो इन दिस केस सोल्यूशन वुड बी दैट x बिलोंग्स टू r। इज इट ओके? तो x विल बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। या तो देखो ऐसे लिखते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो थर्ड जो हमारी ये इनइक्वालिटी थी, इसका सॉल्यूशन आइदर यू राइट लाइक दिस और लाइक दिस। तो व्हाट वाज द इनइक्वालिटी? दैट मॉड x इज ग्रेटर देन a एंड a इज नेगेटिव। अब फोर्थ देखो, इसी में फोर्थ इनइक्वालिटी लेते हैं कि मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a व्हेन a इज नेगेटिव। अगेन लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज आई टेक a टू बी -1/3। a को नेगेटिव लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने -1/3 ले लिया। इनइक्वालिटी देखो क्या बनी। आई हैव द इनइक्वालिटी नाउ दैट मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/3। फिर से x अगर कोई भी रियल नंबर है उसका मॉड 0 या 0 से बड़ा होता है। अब आप देखो, अगर कोई नंबर 0 या 0 से बड़ा है तो -1/3 से तो बड़ा ऑटोमेटिकली हो गया ना। इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? आइदर इक्वल टू -1/3 और ग्रेटर देन। इक्वल तो हो नहीं सकता मॉड x नेगेटिव नंबर के, पर ग्रेटर तो हो सकता है। तो इसमें भी x हम कोई भी रियल नंबर लेंगे बेटा, उसका मॉड -1/3 से बड़ा ही होगा। तो इन दिस केस ऑल्सो द सोल्यूशन सेट विल बी दैट x बिलोंग्स टू r, और यू कैन से x बिलोंग्स टू -∞ टू इंफिनिटी। ठीक है। तो अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी है और a नेगेटिव है तो इसका सोल्यूशन भी आपका ये हो जाएगा, x विल बी एनी रियल नंबर। तो दो केसेस वी हैव सीन। फर्स्ट फोर जो हमने स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज करी, फॉर दैट a वाज पॉजिटिव, इनमें a वाज नेगेटिव। नाउ लेट मी टेक केस 3, जब a इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, तब देखते हैं। केस 3 देखो, जब हमारे पास a जो है इक्वल टू 0 है। अब इसमें पहली इनइक्वालिटी लेते हैं कि मॉड x इज लेस देन 0। ठीक है, लेस देन a। ठीक है ना, एक तरह से ये इनइक्वालिटी ले रहे हैं, मॉड x इज लेस देन a व्हेन a इज 0। तो व्हाट डज इट मीन? दैट इज वी आर टेकिंग दिस इनइक्वालिटी मॉड x इज लेस देन 0। फिर से देखो, अगर x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, हमें पता है उसका मॉड 0 या 0 से बड़ा होता है, तो लेस देन 0 तो कभी होता ही नहीं है। तो इस केस में नो सोल्यूशन, or we can say solution set is empty. So when we have this inequality mod x is strictly less than 0, इसका solution no solution आएगा या फिर क्या आएगा? empty set. Let us take the second one now. अगला हम ये लेते हैं mod x is less than or equal to a where a is 0. एक तरह से ये inequality क्या हो गई? a 0 है ना, तो I have mod x is less than or equal to 0. अब देखो, किसी भी नंबर का मॉड लेस देन 0 तो कभी भी नहीं होता, ये हमने ऊपर ही देख लिया। लेकिन मॉड x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है ना, और ये कब होता है? सिर्फ एक ही केस में, जब x क्या है? 0। तो व्हेन x इज 0 उसका मॉड 0 होता है। तो इसमें इसका जो सोल्यूशन है दैट विल बी अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0। इज इट ऑल राइट? तो इसका सोल्यूशन सेट ये हो जाएगा। Only x equal to 0 is going to satisfy this inequality. All right. So solution set will be this, because if x is 0, mod x is 0. इसी का थर्ड लेते हैं। थर्ड would be that mod x is greater than a when a is equal to 0. Inequality क्या बन गई? देखो, इसका मतलब कि mod x strictly greater than 0. अब यहां पे ध्यान से करना, we know that if x is any real number, mod x जो होता है 0 या 0 से बड़ा होता है। अब इसमें देखो, अगर तो x आपका 0 होता है, as we have done in the second case, कि अगर x 0 है तो mod x 0 होता है, और आपका अगर x नॉन 0 है, any नॉन 0 नंबर बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका मॉड आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं विच इज नॉन 0, x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, राइट? 0 इज नॉट गोइंग टू कम। So solution of inequality mod x strictly greater than 0 would be that x belongs to all real numbers except 0. Now the fourth one in this case, fourth would be
mod x is greater than or equal to a when a is equal to 0. That is, what do we mean by this? Inequality क्या बन गई देखो, a 0 है ना, तो mod x is greater than or equal to 0. अब we've been saying throughout this topic that if x is any real number, उसका mod 0 या 0 से बड़ा ही होता है. तो that means in this case x can be any real number, or you can say that x belongs to minus infinity to infinity. Is it okay? Or we can say x belongs to minus infinity to infinity. ये हो गया. तो जब भी हमारे पास mod x greater than or equal to 0 होगा, that means x कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है. ठीक है, तो आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस का वो अब आपको क्लियर हो गया. डेफिनेशन कर ली हमने, और इनइक्वलिटीज में वी हैव सीन ऑल द केसेस व्हेन राइट साइड वी हैव अ कांस्टेंट इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. ठीक है, अब लेट अस नाउ मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो ये इनइक्वलिटीज एज इट इज ना आए, पर जो सॉल्यूशन हम करेंगे उनमें यही कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस नाउ. ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट सॉल्यूशन ऑफ mod x minus 3 is less than 1. तो let us find the solution to this question now. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है. इनइक्वलिटी है mod x minus 3 is less than 1. अब आप देख रहे हो राइट साइड 1 है, पॉजिटिव है. तो जब राइट हैंड साइड 1 है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स a 1 है. तो रिमेंबर नंबर लाइन पे हमने -1 लेना है और 1 लेना है. और फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है. स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी मीन्स कि -1 और 1 पे लेंगे ब्लैंक सर्कल. उसके बाद हमने कहा विल राइट प्लस माइनस प्लस. और अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो कौन सा रीजन आएगा? माइनस वाला. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हम बोल रहे हैं रीजन -1 to 1 के बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. ये वैल्यूज कौन ले रहा है? मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी. जैसे हमने कहा था यहां पे देखो कि अगर mod x लेस देन a है तो वी सेड x लाई करेगा -a से a के बीच में, isn't it? तो अब यहां पे mod के अंदर x नहीं है बेटा, वो क्या है? x -3 है. तो -1 और 1 के बीच की वैल्यूज कौन ले रहा है? x -3 ले रहा है, x नहीं ले रहा. नाउ वी हैव टू फाइंड कि अगर x -3 लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में, तो x कहां लाई करेगा? उसके लिए हम हमारा बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज का रिजल्ट यूज करेंगे कि लेट अस ऐड 3. याद है, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से लीनियर इनइक्वालिटी में या किसी भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 3 ऐड करो तो -1 + 3 विल बी 2. यहां पे हो जाएगा x और यहां पे हो जाएगा 4. तो दैट मीन्स x इज लाइंग बिटवीन 2 to 4. इंटरवल फॉर्म में आंसर देना होता तो हम कैसे देते? x belongs to open interval 2 to 4. तो डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शन किस फॉर्म में आंसर है हम दे सकते हैं. तो आंसर इज दैट x lies between 2 to 4. So that means here D option will be correct. Is it all right? So if you have any other number inside the modulus except x, तो आपने वही मेथड अप्लाई करना है. The only thing is कि -1 to 1 के बीच में x -3 लाई करेगा. तो ऐड 3 कर लो तो आपको इंटरवल मिल जाएगा जहां पे x लाई करता है. Okay, so this was the first question. Let us now move on to the second question. अब second question में देखो क्या है? Mod of 3x minus 2 is greater than or equal to 1. So now we are going to do the solution for this one. ठीक है, अब देखो इसका solution हम कैसे करेंगे. क्या करना है हमने? हमारे पास inequality है mod of 3x minus 2 greater than or equal to 1. ऑब्जर्व करो राइट हैंड साइड 1 है, फिर से पॉजिटिव है. तो अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, हमारा क्या स्टेप था? पहला नंबर लाइन पे लोगे -1 और 1. अब देखो इक्वल टू 1 भी अलाउड है. पिछले क्वेश्चन में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, इसमें इक्वल टू 1 भी है. तो -1 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं. वाई? बिकॉज -1 का मॉड भी 1 होगा और 1 का मॉड भी 1 होगा. तो डार्क सर्कल्स आ गए. फिर प्लस माइनस प्लस, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है. ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 है. ग्रेटर देन के साइन में आपको पता है प्लस वाला रीजन आंसर होता है. ठीक है, रिमेंबर व्हाट डिड वी से? दैट इफ वी हैव x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो या तो x हमारा लेस देन इक्वल टू -a होता है या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a. राइट, अब
इस इनइक्वालिटी में जो हमने स्टैंडर्ड करी थी मॉड के अंदर x था बेटा, यहां पे मॉड के अंदर कौन है 3x माइनस 2, तो ये वैल्यूज कौन ले रहा है 3x माइनस 2 ले रहा है. दीज वैल्यूज आर टेकन बाय 3x माइनस 2. इसका मतलब या तो 3x माइनस 2 माइनस 1 से छोटा है या फिर 3x माइनस 2 1 से बड़ा होना चाहिए. तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, वी विल से 3x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि हमारे पास लेस देन और इक्वल टू था तो माइनस 1 और 1 पे ब्लैंक डार्क सर्कल्स थे तो इक्वलिटी भी आएगी. या फिर हम कहेंगे 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. और बाद में सॉल्व करके और का मतलब यूनियन होता है, तो विल कंबाइन बोथ द आंसर्स बाय यूनियन. इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले. 3x इज लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1. नाउ वी डिवाइड बाय 3. सिंस 3 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 3. अब यहां पे देखो और लगाते जाओ साथ में. 2 टेक ऑन द अदर साइड, तो 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. Let us divide by 3 again. Again it is a positive quantity, तो inequality का साइन सेम रहेगा. तो I have x is greater than or equal to 1 और यहां पे और है. अब देखो नंबर लाइन पे पहले इसका सोल्यूशन लिखते हैं और फिर उसको इंटरवल फॉर्म में लिख देंगे. अब 1 by 3 पहले आएगा फिर 1 आएगा. क्या बोल रहे हैं हम, या तो x इक्वल टू 1 by 3 या लेस देन 1 by 3, और या फिर x 1 है, ठीक है, आइदर x इज इक्वल टू 1 और इट इज ग्रेटर देन 1. तो अब इंटरवल फॉर्म में कैसे आंसर लिखोगे, देखो पीछे जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तक और आगे कहां तक गए, इन्फिनिटी तक. तो सोल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी से क्लोज्ड इंटरवल 1 by 3, राइट, दिस इज डार्क सर्कल, एंड यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity. तो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी, राइट. ग्रेटर देन था तो हमारे पास दो रीजन्स थे जिनको हमने कंबाइन किया किससे, यूनियन से. लेट अस वेरीफाई द ऑप्शन. माइनस इन्फिनिटी टू 1 by 3, यूनियन 1 to infinity. So you can very easily see that D option is correct. Okay, because it was greater than or equal to 1. So at 1 by 3 and 1 we have closed interval. Got it? So this was the second question. Now let us move on to the third question. Now you can see on your screen the third question, which says mod of x plus 1 by 4 is greater than 7 by 4. Now let us see how to solve it. So we are going to do the solution of this question now. Okay. Now let me take the inequality which says that mod of x plus 1 by 4 is greater than 7 by 4, right? This is the question. Now what we can do is, first of all, inside the modulus maybe you can take the LCM. So if we take LCM as 4, I have 4x plus 1 and this is greater than 7 by 4. Now remember, in modulus if you are dividing or multiplying, you can separate the mod, meaning that if you have mod x upon y, you can write it as mod x upon mod y. Similarly for product also. But in case of addition or subtraction, inequality does not hold, we have inequality. Alright. In this case we have ratio. So we can separate the mod. I have 4x plus 1 divided by mod 4 is greater than 7 by 4. Now look at the denominator over here. Mod of 4. It is a positive quantity. So it will come out as it is. So what do I get? We get 4x plus 1 mod upon 4 is greater than 7 by 4. Now let us multiply by 4 to remove this 4 in the denominator. So if I multiply by 4 on both the sides and it is a positive quantity, so sign of inequality will remain same. I get 4x plus 1 mod is greater than 7. Now this is the inequality in modulus which I have to solve. अब कैसे करेंगे देखो. नंबर लाइन पे आप देखो राइट साइड पॉजिटिव है ना, 7 है, तो व्हाट वी हैव टू डू, नंबर लाइन के ऊपर पहले क्या लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक -7, फिर उसके बाद हम लेंगे 7 एंड देन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो -7 और 7 पे आएगा ब्लैंक सर्कल. फिर राइट साइड से शुरू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब ग्रेटर देन है ना तो प्लस वाला रीजन लेना था रिमेंबर, तो
प्लस वाला रीजन हम आंसर लेंगे। अब अगेन ये वैल्यूज कौन ले रहा है, 4x प्लस 1, तो यहां पे 4x प्लस 1 लिख लेते हैं। तो या तो 4x प्लस 1 बेटा लेस देन -7 होना चाहिए, या 4x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7। नाउ लेट अस टेक, सो वी हैव 4x प्लस 1 शुड बी लेस देन -7, या फिर रिमेंबर दो रीजन आंसर हैं, या फिर 4x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 7। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, और है तो क्या लेना है, यूनियन लेंगे एंड में। तो 1 को उधर ले जाओ, तो 4x इज, नाउ दीज आर लाइक लीनियर इनइक्वालिटीज विच आर वेरी इजी टू सॉल्व। तो 4x इज लेस देन -8। अब इसको डिवाइड करो 4 से, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो आई हैव x इज लेस देन -2। गॉट इट। इसको सॉल्व करते हैं, 1 को उधर लेके जाओगे तो 4x इज ग्रेटर देन 6। Now let us divide by 4. So we have x is greater than 6 by 4, which we can say that x is greater than 3 by 2. Is it all right? Now we have or. So either x is less than -2 or x is greater than 3 by 2. So how do we write the solution? Maybe if you want, you can plot it on the number line also before you write in the interval form. -2 and 3 by 2. तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, -2 पे ब्लैंक सर्कल, तो या तो x -2 से छोटा या फिर x 3 by 2 से बड़ा। तो आंसर क्या आ गया, पीछे जा रहे हैं -∞ और आगे इन्फिनिटी। तो वी हैव -∞ टू -2 एंड देन यूनियन 3 by 2 से लेकर इन्फिनिटी। सो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो इसमें भी हमारे पास, हमने पहले क्या किया, इसमें अगर आप चाहो तो एलसीएम नहीं भी लेके भी कर सकते हो। ओके, इफ यू डोंट वांट टू टेक द एलसीएम यू कैन डायरेक्टली डू आल्सो, बट व्हेन वी टूक एलसीएम, बिकॉज वी ऑब्जर्व्ड कि दोनों तरफ 4 था बेटा डिनोमिनेटर में, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों तरफ 4 था तो 4 हटा सकते थे, दैट इज वाई वी टुक 4 आउटसाइड, वी मल्टीप्लाइड बाय 4, तो डिनोमिनेटर हमारा हट गया एंड देन वी सॉल्व्ड इट प्रॉपरली। अब आंसर देखो क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आया है, -∞ टू -2 यूनियन 3 by 2 टू इन्फिनिटी। सो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट, -∞ टू -2 यूनियन 3 by 2 से इन्फिनिटी, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। गॉट इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. Shall we move on to the next question? Okay, because solving only will help you understand this concept better and better. Now the fourth question. अब यहाँ पे देखो, we have modulus on both the sides. There are a few new things which I am going to tell you in this particular question. Okay, so let us see how to solve that. अब देखो inequality क्या है? The truth set of the inequation means the solution of the inequation mod of 3x is less than mod of 6 minus 3x. Now let me tell you how to solve it. So we are going to find the solution, right? इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ 3x इज लेस देन मॉड ऑफ 6 माइनस 3x. अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया अभी कि मॉड लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप चीज ऑब्जर्व करो कि जैसे क्वोशंट में होता है बेटा, प्रोडक्ट में भी आप मॉड को सेपरेट कर सकते हो, राइट, वी कैन सेपरेट द मॉडुलस. तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे मॉड ऑफ 3 अलग हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ x अलग हो जाएगा. यहाँ पे you can take 3 common. So if you take 3 common, you have 2 minus x. And again we can separate the mod. And remember, चलो पहले ये लिखते हैं, तो 3 हमारा पॉजिटिव है तो वो मॉड के बाहर एज इट इज आ जाएगा, राइट, ये है. तो मॉड ऑफ 3 इज 3. So 3 times mod x is less than 3 times 2 minus x. ये हो गया, राइट. अब 3 कैंसिल हो सकता है, लेट अस डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स. पॉजिटिव क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा. तो आई हैव नाउ मॉड x इज लेस देन मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स, राइट, ये आ गया. अब देखो जब दोनों तरफ मॉड है ना, या तो हम केसेस लें, वो लेने में क्वेश्चन लेंदी हो जाता है. आई विल टेल यू अ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एन इनइक्वालिटी जिसमें मॉडुलस दोनों तरफ है और सब कुछ मॉड के अंदर है, पूरी लेफ्ट साइड अंडर मॉड एंड पूरी राइट साइड ऑल्सो अंडर मॉड. कॉन्सेप्ट क्या है देखो कि अगर आपके पास ये होता है, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, सो इफ यू हैव a लेस देन b, राइट, एंड a एंड b बोथ आर पॉजिटिव,
तो क्या होगा, आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो और साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो इफ वी डू स्क्वेयरिंग, ए स्क्वेयर विल बी लेस देन बी स्क्वेयर. पहला कॉन्सेप्ट हम ये यूज करेंगे. इसको एग्जाम्पल से देखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 इज लेस देन 2, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है. तो अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो 1 स्क्वेयर इज लेस देन 2 स्क्वेयर. दैट इज ट्रू बिकॉज 1 इज लेस देन 4. ठीक है, पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज एक और हम ऑब्जर्व करते हैं विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन, कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, तो जैसे अगर हम मॉड x का स्क्वायर करते हैं तो इट विल बी सेम एज x स्क्वायर. वाई? क्योंकि मॉड x जब आपने ले लिया वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया. तो मॉड x का स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर बिकॉज बोथ द साइड्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो रिमेंबर ऑलवेज, इफ x इज एनी रियल नंबर then mod x का square will be same as x square. So these two things we are going to use while solving it. Now as you can see, there is modulus on both the sides. Okay, so you can say a and b are greater than or equal to 0. Even if it is equal to 0, you can do squaring, no problem. We know that when we take modulus, दोनों तरफ जो है हमारी वो negative नहीं है ना, they are greater than or equal to 0. तो safely what we can do here is we can do squaring both sides. तो यहां पे हम कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो उससे आपको केसेस नहीं लेने पड़ेंगे. अब स्क्वेयरिंग करने से देखो क्या हो जाएगा. हमारे पास आ गया मॉड x का स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ 2 माइनस x का स्क्वायर. इज इट ओके? अब एज आई सेड कि अगर x रियल है तो आप मॉड हटा सकते हो स्क्वेयरिंग में. तो दैट मीन्स वी हैव x स्क्वायर विल बी, जस्ट अ मोमेंट, सो आई हैव x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर. ये इनइक्वालिटी बन गई. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स. सो स्क्वेयरिंग करने से हमें केसेस नहीं लेने पड़ेंगे. आई हैव 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x. गॉट इट? तो टेक ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, स्पेशली इन्वॉल्विंग x. तो आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x विल बी लेस देन 4. तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई सिंपली 4x इज लेस देन 4. सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी बन गई. ठीक है, एक ही केस लेना पड़ा. लेट अस डिवाइड बाय 4. पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 4 से डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. तो सॉल्यूशन आ गया x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का. तो व्हाट डिड वी लर्न? वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमारे पास एक तो दोनों तरफ मॉड है तो वी कैन सेफली डू स्क्वेयरिंग. वाई? बिकॉज कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज जो होती हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो. ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. और दूसरी बात कि अगर आप अगर x रियल है तो मॉड x का स्क्वायर विल बी सेम एज x स्क्वायर. तो व्हाट डिड वी डू? हमने यहाँ पे जैसे ये वाली इनइक्वालिटी आई थी बेटा, तो दोनों तरफ वी हैव डन स्क्वेयरिंग. इज इट ऑल राइट? स्क्वेयरिंग करने से हमारा मॉड हट गया because of this second result. तो x square is less than 2 minus x का whole square. सॉल्व किया, सोल्यूशन आ गया x is less than 1. इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x belongs to minus infinity to 1 open interval. Because on the number line this is 1, तो x is strictly less than 1. Right? Now let us see the correct option. Okay? So we have this as the solution. Now which option is correct? Let us find out. So x is belonging to minus infinity to 1 open interval. So that means B option is going to be correct. Right? So x is belonging to minus infinity to 1. Let us take one more question of this type. Look at question number 5 now. In the fifth question, on the right hand side, right now we do not have the modulus. Okay? Now let us see how we are going to solve this question. Let us see the solution now. Right? Now let us write the inequality. Again it is involving modulus. So I have 1 plus 3 upon x is strictly greater than 2. अब क्या करना है देखो. What we can do is, first of all we can take LCM. So I have mod of x plus 3 upon x greater than 2. Remember I told you, when you have quotient we can separate the modulus. It can be written like this. तो लेफ्ट साइड पे क्वोशंट है, हम मॉड को सेपरेट कर लेते हैं. इज इट ओके? ये आ गया. अब एक चीज ध्यान में रखो, यहां डिनोमिनेटर में वेरिएबल है.
और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, दैट मीन्स वी हैव दिस कंडीशन मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे सोल्यूशन में जीरो आ रहा है तो उसको एक्सक्लूड करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। अब देखो किसी भी नंबर का मॉड या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, जीरो मॉड है नहीं, तो यहां पे मॉड एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इज इट ऑल राइट? एंड रिमेंबर, इफ यू हैव डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट साइड पे तो एक तरह से डिनोमिनेटर वन है, तो डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हैं तो वी कैन सेफली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट एज मॉड एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स मॉड एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम बिकॉज इट इज पॉजिटिव। अब दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है लेफ्ट साइड, क्योंकि मॉड एक्स प्लस 3 है, देखो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव और मे बी इक्वल टू जीरो, और राइट साइड भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहां पे लेट अस डू अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब भी दोनों साइड्स आपकी पॉजिटिव हो तो यू कैन डू स्क्वेयरिंग, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो ये बन गया मॉड एक्स प्लस 3 होल स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स मॉड एक्स स्क्वेयर। एंड रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, दैट इफ यू हैव x to be any real number, then mod x का square is always equal to x square. So benefit of this would be that now we can remove the modulus. So I have x plus 3 whole square is greater than 4x square. Now let us solve it. Okay. Now let us open the brackets. X square plus 3 3s are 9 plus 6x and minus 4x square will be positive. I have this. Now it is reducing to a quadratic inequality. What is it? Minus 3x square plus 6x plus 9 is greater than 0. Remember I told you when we were solving quadratic inequalities कि जब भी factorize करना है ensure that x square का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट जिसे कहते हैं। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, उसको पहले पॉजिटिव करना है। एक और चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि -3 कॉमन लिया जा सकता है। व्हाट आर वी लेफ्ट विद, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -3, इजंट इट? दिस इज ग्रेटर देन 0। तो नाउ टू रिमूव -3 वी कैन डिवाइड बाय -3। नेगेटिव क्वांटिटी है, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 टू बी नेगेटिव। अब देखो ये हमारी बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कैसे सॉल्व करनी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 लेस देन 0। पहली दो टर्म्स में x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 लेस देन 0। इज इट ओके? अब x माइनस 3 कॉमन ले लो तो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1 लेस देन 0, राइट? अब देखो क्या करना है, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। पहले फैक्टर का रूट होगा 3 और दूसरा रूट आ गया -1। रिमेंबर नंबर लाइन पे छोटा वाला रूट पहले आएगा -1 एंड देन वी हैव द बिगर रूट दैट इज 3। क्योंकि x के कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है यहाँ पे दोनों फैक्टर्स में, तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ब्लैंक सर्कल्स आएंगे। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव होता है तो कौन सा रीजन लेना होता है, माइनस वाला। तो हमारा x बिलोंग कर रहा है -1 to 3, बट रिमेंबर इनिशियली वी सेड वन इंपॉर्टेंट थिंग, this one, that x cannot be equal to 0। तो अगर सॉल्यूशन में 0 आ रहा है तो उसको रिमूव करना है। लेट अस चेक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो -1 और 3 के बीच में आपका 0 आ रहा है, तो वो रिमूव करना है तो 0 के ऊपर ब्लैंक सर्कल आएगा। अब सोल्यूशन सेट देखो क्या बन गया। व्हाट इज द सोल्यूशन सेट नाउ, कि x इज बिलोंगिंग टू -1 से 0 ओपन इंटरवल एंड देन यूनियन ओपन इंटरवल 0 से लेकर 3, या ऐसे भी लिख सकते थे देखो इसको कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 to 3, इस इंटरवल में से एक सिंगल पॉइंट माइनस करना है 0। तो दोनों ही
करेक्ट आंसर्स हैं, किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं बेटा, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज अगर हम जीरो का ख्याल नहीं करेंगे तो हमारी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन चेक करते हैं। Okay, so we have -1 to 0 union 0 to 3. So you can see we have C option correct. So this is the correct option, that -1 to 0 union open interval 0 to 3, because 0 was to be excluded. Is it okay? So this was the question. Okay. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, now look at this question, question number 6. Let us read the question. सोल्यूशन ऑफ, अब देखो इसमें मॉड के अंदर फिर से एक मॉड है ना, मॉड ऑफ, ये देखो मॉड है और ये अंदर फिर से ये वाला नंबर मॉड में है। तो मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। सो लेट अस डू द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ व्हाट इज द इनइक्वालिटी? मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 माइनस मॉड एक्स। अब दोनों तरफ मॉड है ना, पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो रिमेंबर वी कैन डू स्क्वेयरिंग। तो दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो वी कैन डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स की हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड हो गया, देखो मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर, दिस इज लेस देन 1 माइनस एक्स का मॉड और उसका स्क्वेयर। Again, remember, if x is any real number, then mod x का square is same as x square. तो mod बाहर वाला हट जाएगा. Is it okay? So we have this as mod x minus 1 का square. अब देखो ख्याल रखना, ये वाला mod नहीं हटेगा, हम बाहर वाले mod की बात कर रहे हैं, उसकी स्क्वेयरिंग है तो बाहर वाला mod हट जाएगा। तो this is less than 1 minus x का square. अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। लेफ्ट साइड पे वी आर गेटिंग मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स। दिस इज लेस देन, राइट साइड में ब्रैकेट्स ओपन कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. ऑब्जर्व दिस थिंग, वी सेड दैट इफ you take x to be any real number, then mod x का square is x square. ये बात फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर x रियल है and we are dealing with real numbers only, तो mod x का square can be replaced by x square. So let us write it as x square plus 1 minus 2 mod x. ये दोनों टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले आओ, -1 minus x square is less than minus 2x. तो लेफ्ट साइड क्या हो गई, देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, वी आर कैंसलिंग आउट x स्क्वायर एंड वी आर कैंसलिंग आउट 1. सो आई हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -2 टाइम्स mod x, राइट, एंड दिस इज लेस देन -2x. ये हो गया. अब नेगेटिव क्वांटिटी है -2, उसको हटाना है, तो लेट अस डिवाइड बाय -2. अब याद है ना, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो आई एम गेटिंग मॉड x इज ग्रेटर देन x. मेरे पास ये आ गया. अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए. अब देखो बेसिक डेफिनेशन याद करो जो मैंने आपको बताई थी. रिमेंबर, ग्राफ भी हमने देखा था. ग्राफ एक बार ही रिकॉल करते हैं, जिसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और एक हम देखेंगे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ. ओके, सेम उस पे बनाते हैं ये. तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आई ड्रॉ विद ब्लू. तो इट वॉज लाइक दिस. तो दिस वॉज y इक्वल टू एक्स, राइट, और y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे था, वी शेप ग्राफ ऐसे. अब देखो हमें क्या चाहिए, आई वॉन्ट मॉड x टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x. आप ऑब्जर्व करो ये वाला केस, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, उस केस में तो मॉड x के इक्वल है ना, ग्राफ ओवरलैप हो रहा है. और यहां पे लेफ्ट साइड पे आपका जब x नेगेटिव है, यू कैन सी दिस इज मॉड x, और ये हमारा जो था ये क्या था, x था. तो वी कैन क्लियरली सी इन दिस केस मॉड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x. तो कब मॉड x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x होता है, जब x नेगेटिव है. तो इसका सॉल्यूशन हो गया कि x इज लेस देन 0. और यू कैन से x बिलोंग्स टू -infinity to 0.
तो किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो आंसर. आइदर यू कैन से इट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 और वी कैन से दैट x इज लेस देन 0. Got it? तो mod x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x तब होता है जब x नेगेटिव है, और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है देखो, तब mod x क्या होता है, equal to x, as I told you in the beginning also. So this is very very important. Whenever you have confusion, you can take the help of graph also. ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है कि जब x 0 या 0 से बड़ा है, ग्राफ एक के ऊपर एक है, तो मतलब इक्वल है, और जब x नेगेटिव है, mod x का ग्राफ ऊपर है बेटा, x का ग्राफ नीचे है, तो ऑब्वियसली mod x will be strictly greater than x. Let us check the option. So x is negative और minus infinity to 0. अब इसमें देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज. Is it all right? So correct is none of these because our solution was minus infinity to 0. Okay. So I hope you have understood this question. So today what we did was कि हमने पहले तो बेटा मॉड्यूलस देखा कि होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है. देन वी हैड सीन द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस. फिर हमने बेसिक इनइक्वालिटीज देखी मॉड्यूलस के ऊपर, जैसे mod x लेस देन a, mod x लेस देन इक्वल टू a एक्सेट्रा, और उसमें भी हमने सब केसेस लिए कि राइट साइड a पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है. And after that we have solved questions based on them. Okay, so that is all for this lecture. I hope you will enjoy the benefit of our course. Okay, so rest we will continue in the next class. Thank you and bye bye beta.